Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. Myself, Anaga, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about the new upcoming release, that is Tally Prime 4.1. So before moving on to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple soft segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bittrex 24 CRM and Skill India. So before moving ahead to the today's topic, we'll just welcome our speakers. So Mr. Tarun, are you here? Yes, ma'am. Okay. Ms. Tejashri, are you here? Yes, ma'am. Okay. Mr. Bhagwati Dandaria, sir, are you here? Yeah, I'm available, Anga. Thank you. Hearty welcome all of you. So now I request Tarun and Tejashri to start with your presentation. Okay, ma'am. Can you please share the screen? Okay, thank you. So, hello everyone. Myself Tejashri. I'm here to represent the webinar on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcomes to all of you. Next slide, please. Tally Prime 4.1 MSME release. So we are going to discuss about the new release, new features, that is MSME release 4.1. So Tally Prime 4.1 release is enhanced to simplify MSME payments and drive your payments process compliant to MSME rule. Registered MSMEs can effortlessly print Udyam registration number, track upcoming or delayed receivables, and send timely reminders. Business transacting with MSMEs can quickly identifying the upcoming payables to MSMEs along with the due days and use MSME Form 1 to report overdue bills. So Tally Prime रिलीज 4.1 में MSME पेमेंट और कंप्लाइंट प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है. जो भी रजिस्टर्ड MSME यूजर्स है वो इजीली उनके अपकमिंग और डिलेड रिसीवेबल्स को ट्रैक करके रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं. जो भी MSME ट्रांजैक्शंस है उसके अपकमिंग पेबल्स ड्यू डेट के साथ और साथ ही MSME फॉर्म 1 का यूज करके ओवरड्यू बिल्स का भी रिपोर्ट देख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. With Tally Prime 4.1, you can easily update the Udyam registration number for your company and across all the MSME party ledgers. You can print Udyam registration numbers on invoices and other documents and track the upcoming receivables. Business transacting with MSMEs can quickly track upcoming payables and overdue bills to comply with the 43 section and generate MSME Form 1 to report overdue bill. Tally Prime 4.1 रिलीज में उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आप इजीली कंपनी में मेंशन कर सकते हो. साथ ही पार्टी लेटर्स में भी आप अपडेट कर सकते हो. ये रजिस्ट्रेशन आप इनवॉइसेस में और अदर डॉक्यूमेंट्स में भी प्रिंट कर सकते हो. सारे अपकमिंग पेबल्स और ओवरड्यू बिल्स आप सेक्शन 43 में कंप्लाई करके देख सकते हो और MSME फॉर्म 1 का जनरेट करके ओवरड्यूज का रिपोर्ट भी देख सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड. MSME configuration in 2 simple steps. First step is update MSME details at company level and second is update MSME registration details in the party ledger. MSME का configuration आप सिंपल 2 स्टेप्स में कर सकते हो. आपको MSME के डिटेल्स कंपनी लेवल पे पहले अपडेट करना है और नेक्स्ट आपको MSME के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके पार्टी लेजर्स में भी अपडेट करना है जिससे आप MSME का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर सकते हो. So that's it from my side. Thank you. It's over to you, Tarun. Thank you all of you. Yes, sure. Ma'am, my screen is visible? Yeah, Yes. it's visible. Yeah. So good evening everyone. My name is Tarun and मैं आज आपको MSME का जो सेटअप है वो Tally Prime 4.1 रिलीज में
किस तरीके से करना है मैं वो प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। तो टैली प्राइम के अंदर जो आपका लेटेस्ट रिलीज है 4.1, इसमें आप अगर अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना चाहते हैं एमएसएमई का, तो उसके लिए आपको F11 में ऑप्शन है F11 जैसे आपने किया इसमें, तो F11 करने पर आपको राइट हैंड साइड में मोर डिटेल्स में जाना है। मोर डिटेल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का, तो इसमें एंटर करके और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना है। तो 3 टाइप्स के यहाँ पर एंटरप्राइज है, माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है। तो जो भी आपका टाइप है वो सिलेक्ट करना है आपको और उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। ये करने के बाद आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अब जैसे कि आप नॉर्मली अपना जो सेल्स वाउचर या जो भी आपकी रिपोर्ट्स है उस पर आपने, अगर आपको एमएसएमई नंबर जो है अगर वो प्रिंट करके चाहिए तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक वाउचर का, कि जैसे हम प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट के टाइम पे यहाँ पर जो एड्रेस जो आएगा आपका कंपनी का, उसके वहाँ पे ही आपको एड्रेस के जस्ट नीचे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ आ जाएगा लेफ्ट साइड में टॉप में। तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे आप वो आ जाएगा आपका, और जो इंडस्ट्री टाइप है आपका एंटरप्राइज तो वो भी आ जाएगा वहाँ पे, जैसे ब्रैकेट में माइक्रो करके लिखा हुआ है वो चीज़। अगर ये सपोज करिए अगर वहाँ पर शो नहीं होता है तो इसके लिए कॉन्फ़िगर में ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आप इसमें जाएंगे और उद्यम अगर मैं लिखूँ तो उद्यम लिख के भी आ जाएगा डायरेक्टली। कंपनी डिटेल्स के अंदर वैसे ड्रिल डाउन करके अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको शो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एंटरप्राइज टाइप। तो इसको आप यस कर लेंगे, यस करके कंट्रोल ए कर देंगे तो भी आपका इसमें आ जाएगा प्रिंट होकर के। ठीक है, ये कंपनी लेवल पे हो गया आपका। अगर आप इसको जैसे सभी पार्टीज में मेंटेन करेंगे, जितने भी पार्टी के लेजर आपके सन्डे डेटर्स या सन्डे क्रेडिटर्स, अगर उसमें भी आप मेंटेन करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे अगर हम एक एक पार्टी का अगर हम लेजर करें, ऑल्टर में जाके लेजर में जा करके अगर सपोज करिए मैं कोई पार्टी ले लेता हूँ यहाँ पे, और ये पार्टी का लेजर है। इस पार्टी के लेजर के अंदर अगर मुझे एमएसएमई नंबर डालना है तो अभी यहाँ पे वैसे तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसमें, F12 से हम इसको इनेबल कर लेते हैं। F12 के अंदर यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन जनरल डिटेल्स के अंदर लास्ट ऑप्शन मिलेगा आपको प्रोवाइड एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसको मैं यस कर लेता हूँ, कंट्रोल ए किया मैंने। उसके बाद एमएसएमई के लिए ये भी ज़रूरी है आपका कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल जो है वो यस होना चाहिए। और इस पर डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड जो है अगर आपने डाल रखा है तो भी ठीक है, अगर नहीं डाल रखा है तो वो जो एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। जैसे कि अगर कहीं पे एग्रीमेंट नहीं है तो एमएसएमई की तरफ से 15 डेज है कि 15 डेज का क्रेडिट पीरियड होगा। और अगर आपने कोई भी एग्रीमेंट है आपका ऑलरेडी तो 30 डेज 45 डेज जितने भी डेज का होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे 60 डेज डाल रखा है, वो करने के बाद एड्रेस और ये सारी चीज़ें रहेंगी सेम जैसे प्रीवियसली आप करते आ रहे हैं। फिर यहाँ पे सेट ऑल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इसको आप यस करेंगे। यस करने के बाद भी यहाँ पर इस तरीके से विंडो खुलेगी जहाँ पर आपको ये डालना है। तो टाइप ऑफ एंटरप्राइज इसमें भी सेम चीज़ है, आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम तीनों में से जो भी रहेगा आपका टाइप आप वो सेलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डाल देंगे पार्टी का। वो करने के बाद आपको इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। ये तो हो गया एक पार्टी का। अगर समझो कि हमें मल्टीपल लेजर्स के अंदर वन टाइम में ही अगर अपडेट करना है तो मैं वो भी बता देता हूँ वो कहाँ से होगा आपका। इसके लिए आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, स्टैचुरी रिपोर्ट्स में जाना है, उसके बाद आपको एमएसएमई रिपोर्ट्स में जाना है। एमएसएमई रिपोर्ट्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपडेट पार्टी एमएसएमई डिटेल्स मिलेगा, इसमें जाना है आपको। और यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ ग्रुप, तो नेम ऑफ ग्रुप में अभी जैसे सन्डे डेटर्स या क्रेडिटर्स का समझो अगर हमें डालना है तो हम जो भी हमें जिसके अंदर भी डालना है अपडेट करना है। जैसे मैं क्रेडिटर्स ले लेता हूँ, क्रेडिटर्स लिया मैंने, तो क्रेडिटर्स की जितने भी क्रेडिटर्स होंगे उन सबकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। तो मैंने यहाँ पर ऑल आइटम पे एंटर किया, तो अभी फिलहाल यहाँ पे 2 आ रहे हैं जिनके अंदर डला हुआ नहीं है, बाकी पार्टीज में डला हुआ है तो उसका वो यहाँ पर शो नहीं करेगा। अगर मैं एफेक्ट कर लेता हूँ तो बाकियों का भी दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैंने पेंडिंग वाले लिए तो इसमें 2 आ रहे हैं। तो अब इन दोनों में अगर समझो मुझे डालना है
तो मैं 1 by 1 भी डाल सकता हूँ। एंटर करूंगा तो एंटर करने पर ये फर्स्ट वाली जिस पार्टी पे कर्सर होगा आपका उसका दिखा देगा कि आपको इसमें डालना है। और अगर मल्टीपल लेजर्स होंगे आपके, मल्टीपल में एक साथ डालना है, तो इसके लिए यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है राइट हैंड साइड में, मल्टी ऑल्टर। तो मल्टी ऑल्टर पे क्लिक करके यहाँ से आप डाल सकते हैं। क्रेडिट डेज आप डालेंगे यहाँ पे, क्रेडिट लिमिट। उसके बाद आपको एंटरप्राइज का टाइप सेलेक्ट करना है और उसके बाद उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। ये डालने के बाद जैसे आपने सभी पार्टीज के लेजर में डाल दिया, सभी पार्टीज के लेजर में डालने के बाद जब आप इनका जैसे वीकली या 10 डेज पे या 15 डेज पे जो जब आप लेजर व्यू करते हैं, तो वैसे ही लेजर व्यू करते हुए ही आप इसको, इनका जो आउटस्टैंडिंग रहेगा या जो बैलेंसेस आपके चल रहे होंगे, उस चीज़ को आप एमएसएमई रिपोर्ट्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो जो क्रेडिट लिमिट आपने डाला है उसके बियॉन्ड अगर कोई बिल्स होता है, जो ओवरड्यू बिल्स हो रहे हैं, तो उसकी पेमेंट्स के लिए आप एमएसएमई की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो एमएसएमई रिपोर्ट्स ये इसके लिए हेल्प करेगा आपको। एमएसएमई फॉर्म 1 में जैसे हम गए तो यहाँ पर अभी कुछ बिल्स आ रहे हैं, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो पीरियड अपना आ रहा है अक्टूबर से लेके मार्च तक का, तो ये 6 मंथ्स का लगा रखा है। इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर 1 मंथ का रखना है आपको तो 1 मंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या अगर आपको 45 डेज रखना है 45 डेज कर सकते हैं, या 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग चलना है तो 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। वो आपका वो है कंसर्न। और अब देखिए जैसे यहाँ पर इस रिपोर्ट पे क्या चीज़ आ रही है आपकी, डेट आ रहा है, रेफरेंस नंबर आ रहा है, पार्टी का नाम आ रहा है और पैन नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में देखेंगे तो पेंडिंग फिगर आ रही है और ड्यू ऑन एज पर एमएसएमई, तो ये ड्यू ऑन डेट आ रहा है इसका। तो जिस किसी पार्टी के लेजर में अगर मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट वाला ले लेते हैं, ये जो पार्टी का लेजर है मैंने ऑल्टर किया, इसमें ड्यू जो क्रेडिट पीरियड डला हुआ है वो 60 डेज का है। ठीक है, 60 डेज के अकॉर्डिंग अब ये एंट्री जो है अपनी वो 20 जुलाई की है, तो 20 जुलाई की एंट्री जो है, अब इसका जो आपका ये आ जाएगा ड्यू ऑन, तो ये थर्ड दिखा रहा है राइट। तो थर्ड के अकॉर्डिंग ओवरड्यू डेज भी इसने काउंट किया 210। और अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, F12 किया मैंने यहाँ पे। F12 करने पर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि इंटरप्राइज टाइप अगर देखना है तो यस कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन देखना है तो वो भी यस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बेस्ड ऑन क्रेडिट डेज प्रोवाइडेड इन, तो इसको अगर मैं 3 टाइप से आप देख सकते हैं, बिल वाइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं जो आपने इनवॉइस के अंदर डाला है। सेकंड आपका कंपनी लेवल से हो सकता है, जो क्रेडिट पीरियड अपने एज पर एग्रीमेंट है। थर्ड है आपका बिल वाइज और एमएसएमई क्रेडिट पीरियड विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो मैंने अगर मैं ये ले लेता हूँ, ये लेने के बाद मैंने यहाँ पर क्रेडिट डेट्स को भी मैंने यस किया। अब मैं इसको कंट्रोल कर देता हूँ। ये करने के बाद अब यहाँ पर देखिए जितने भी बिल्स हैं वो सारे बिल्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर पीरियड के। अब अगर मैं इसमें से सिर्फ पेंडिंग वाले देखना चाहता हूँ तो उसके लिए राइट हैंड साइड में बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाना है आपको, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल बी करने के बाद यहाँ पर टाइप ऑफ बिल्स पूछ रहा है, तो टाइप ऑफ बिल्स में आप क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं, तो यहाँ पर पेंडिंग बिल्स मुझे देखना है तो मैं पेंडिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ। ठीक है, तो ये सारे सिर्फ आपको पेंडिंग बिल्स दिखाएगा। और अल्टरनेटिवली अगर आप ये करना चाहते हैं कि 31 मार्च ले लीजिए, कि 31 मार्च यानी कि जो करंट आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसी पीरियड के अंदर कितने बिल्स हैं पेंडिंग, तो वो भी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और उसके बियॉन्ड अगर नेक्स्ट ईयर के कोई बिल्स होते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे कि आपका जितने भी बिल्स हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं या जो ओवरड्यूज हो रहे हैं, तो ये उसके लिए आपको हेल्पफुल है एमएसएमई। ठीक है, अब ये इसका जैसे आप ये देखेंगे यहाँ से अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो इसका एमएसएमई फॉर्म भी जनरेट होगा आपका, फॉर्म 1। तो ये 2 फीचर्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर आप यहाँ से सपोज करिए कोई लेजर ले लेते हैं, ये लेजर लिया मैंने, और अब जैसे अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करने जाऊंगा
तो एक्सपोर्ट की कंट्रोल ई किया मैंने। कंट्रोल ई करने के बाद इसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो सिमिलरली इसमें भी आपका एमएसएमई नंबर जो है आप डाल सकते हैं, जो पार्टी का होगा आपका, तो वो ऑलरेडी इसमें डला हुआ आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा जैसे पार्टी का लेजर आप एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो इसमें अपना जो कंपनी का होता है तो वो आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, ये इस तरीके से। तो एक्सपोर्ट करें आए आप, चाहे मेल करें आप या प्रिंट लेंगे, तो ये तीनों चीज़ों में आपका ये चीज़ आ जाएगा। राइट, तो इसकी एक्टिविटी जो रहेगी, जैसे आपका एक्सपोर्ट होता है, या तीनों चीज़ बेसिकली सिमिलर है। तो लेजर रिपोर्ट हो गई आपकी। अगर आप रिमाइंडर लेटर करेंगे तो रिमाइंडर लेटर पे भी आ जाएगा आपका ये। और इसका मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जैसे कि डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में गए, एमएसएमई रिपोर्ट्स में गए। यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर फिल्टर लगाते हैं तो फिल्टर के अकॉर्डिंग भी आप अपने जो बिल्स हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ एक, यहाँ पर मैंने कंट्रोल F किया। कंट्रोल F करने के बाद राइट हैंड साइड में मैं F7 में गया, एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में जाने के बाद अब सपोज करिए मैंने यहाँ पर डेट डाला, और डेट डालने के बाद मैं यहाँ पे अभी, क्योंकि पीरियड हमारा अक्टूबर से लेके मार्च का सिलेक्टेड है, तो मैं मार्च तक का ले लेता हूँ, 31/3/24। अगर मुझे ये देखना है कि जो बिल्स हैं मेरे वो 31 से पहले के बिल्स, और जिनका जो ड्यू डेट है वो मार्च में कितने बिल्स हैं जो मेरे ड्यू होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर मार्च का पीरियड ले लूँगा। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं, इसको मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ, या नीचे वाले फिल्टर को आप हटा भी सकते हैं, बात इक्वल है क्योंकि हमने ऊपर ही लेसर देन और इक्वल टू लिया है, तो इसको हम एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी फिल्टर हो करके बिल्स आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर उस मंथ के या उस पीरियड के जो भी आपने लगाया है। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप जो है आपका, ये टैली प्राइम रिलीज 4.1 में आप मेंटेन कर सकते हैं, और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे अब अगर हम एक्सपोर्ट करने जाएं तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये कुछ आपका इस टाइप से आएगा, एमएसएमई स्टेटमेंट जो आ रहा है वो इस तरीके से। बाकी फॉर्म जब जनरेट होगा, फॉर्म भी आप इसका बना सकते हैं, फॉर्म भी बन जाएगा आपका। राइट, तो ये था आज का आपका सेशन एमएसएमई की, इसकी जो डिटेल्स है वो आप कैसे मेंटेन करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you, Tarun and Tejashree, for your presentation. So now it's a time for overview of the today's session. It's over to you, Bhagwati sir. Thank you, team. So, myself is Bhagwati Dhandaria. So today's session is MSME. How MSME models will work in the Tally Prime Release 4.1. So in this terms, जैसा कि आप जानते हैं, फ्रॉम द 1st of April MSME डिटेल्स आपको ऑडिट के टाइम में आपके सीईओ को डिटेल डालनी है, और देयर इज अ लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन आर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन द बिजनेस। सो जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ नोटिफिकेशंस अभी आए नहीं है, बट द डिस्कशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। सो वो सभी चीजों के लिए जो अपकमिंग जो कंप्लाइंस आने वाले हैं एमएसएमई से रिलेटेड इन एनी ऑफ द माइक्रो स्मॉल बिग मीडियम स्केल ऑफ द बिजनेसेस, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो टैली ने अपने प्राइम के रिलीज 4.1 में इनकॉर्पोरेट करनी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंप्लाइंस को लागू करती है फ्रॉम द 1st अप्रैल और अपकमिंग टाइम जब भी, तो यू आर कंप्लीट रेडिली अवेलेबल फॉर ऑल द कंप्लाइंसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगेंगे। So that's why this MSME module is complete incorporated in the 4.1 release. So we are trying to deliver all these things, MSME module, to our all the respective customers. अगर आपने अपने रिलीज को अपग्रेड नहीं करा है
तो प्लीज आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर लीजिए और इसको इनकॉर्पोरेट कीजिए बिफोर द 31st ऑफ द मार्च, क्योंकि अपकमिंग टाइम में चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने ऑडिट में जरूर इसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। नोटिफिकेशंस काफी अभी पेंडिंग है, एक बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियरिटी आ जाएगी तो डेफिनेटली ऑफिशियली आपके पास डिटेल आ जाएगी, उसके बेस पे आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन आप अपने बिजनेस को जो कल करना है उसको आज भी इनकॉर्पोरेट करके आप यूज कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में कहीं से भी आपको कोई चैलेंजेस ना हो। तो दिस इज द आइडिया ऑफ द रिलीज 4.1 टुडे। So you can upgrade your release, you can enjoy your business without any tension and hassle. You can you do your business hassle-free. So this is the idea of the today's session. और जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज अ मार्च मंथ, जहाँ पर काफी चीजें हैं जो कि आपको करने के लिए अकाउंटिंग में है, जिसके लिए हमारी टीम आपके साथ है। जस्ट यू हैव नीड एनी टाइप ऑफ द सपोर्ट इन द टैली, प्लीज कॉन्टैक्ट विथ आवर ऑल द सपोर्ट टीम मेंबर, अकाउंट मैनेजर, बिजनेस अकाउंट मैनेजर्स। कनेक्ट कीजिए, हेल्प लीजिए, अपने बिजनेस को स्मूथ रन कीजिए और हैप्पी एंडिंग कीजिए 31 मार्च 2023 का। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है, न्यू फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड डाटा स्प्लिट करना है, तो दिस इज अ मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, प्लीज कॉन्टैक्ट विद अस, वी विल हेल्प यू आउट, वी आर हियर फॉर योर हेल्प। सो दिस इज ओवरऑल आइडिया, so you can enjoy your day and thank you very much, and guys, over to you. Thank you so much, sir. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. Thank you everyone for joining today's session. Thank you.